Two Dalit teenager sisters were found hanging from a tree in a sugarcane field in Lalpura Majra, Tamoli Purva village in Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri. So far, 4 accused in the matter have been arrested and investigation is currently underway in the case of rape and murder. According to the police, all 4 have been taken into custody. The family of the victims is claiming that the girls were allegedly raped, while the police is saying the girls had gone on their own. The accused have been charged under Section 302, 323, 452, 376 of the IPC and the POCSO Act as well. Meanwhile, this incident has sparked politics as well as a war of words. BJP's Amit Malviya has attacked the opposition's silence over the issue, while Congress MP Rahul Gandhi has said that women's safety cannot be expected from those who get the rapist released and respect them. More developments now coming in. We are now understanding the NCPCR has also taken cognizance of this unfortunate shocker. They've gone on to say the accused should be given a death penalty. Let's listen in to what the NCPCR chief had to say. ये एकदम विभत्स घटना है और इस तरीके के कृत्य करने वाले अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। हमने अपने राज्य बाल आयोग से बात की है। राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष महोदय ने ये अवगत कराया है कि वहाँ पे सभी जो आरोपी थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बड़ी त्वरित कार्यवाही उन्होंने की है। राज्य बाल आयोग के एक सदस्य पीड़ित पक्ष के बच्चियों के माता पिता से, परिवार से मिलने के लिए सोमवार को वहाँ जाने वाले हैं। हमारे भी आयोग के 2 प्रतिनिधि उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी सहायता के लिए वहाँ पे उनके साथ जाएंगे। हमारा प्रयास दोनों आयोगों का मिलकर इस मामले में यही रहेगा कि ये जो अपराधी हैं उनको सजाए मौत मिले। पोक्सो एक बहुत सख्त कानून है जो इस तरीके के कृत्यों में मृत्युदंड का प्रावधान करता है। हम ये इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका सुनवाई हो और मृत्युदंड की सज़ा से कम कोई सज़ा ऐसे अपराधियों के लिए नहीं है तो वो मिले। इसमें पीड़ित परिवार पक्ष की जो भी सहायता हमसे बन पड़ेगी हम लोग करेंगे। सर, क्या आप लोग वहाँ पर राज्य सरकार? The NCPCR, they're also taking cognizance, saying the strictest punishment should be meted out to those who are involved in this heinous crime. Let me first bring in my colleague and our Uttar Pradesh Bureau Chief, Pranshu, who's been tracking all these developments for us. Pranshu, first recap for our viewers, when did this incident come to light and what is the family claiming at this point? Well, this incident was reported yesterday evening. In fact, the girls went missing at around 6 p.m. yesterday evening, and the bodies were found at around 8:30 p.m. later yesterday night. And the family's allegation is that girls were abducted by 3 motorcycle-borne men. However, the police in this investigation found out that abduction theory is not correct, though the girls, of course, have gone on their own, but later on they were subjected to rape and then subsequent murder. 6 people, as we know, already have been arrested. One of the assailants has also sustained a gun shot in the police center before he was arrested. And now, of course, the Commission for Prevention of Child Rights has also intervened. And there is an all-round heat, but the government clearly says that, the case has been worked out with all these involved in this case arrested well with the period of less than 24 hours. Okay. Of course, the postmortem will bring a lot of clarity to what really happened. Pranshu, I'll just request you to stay on with us. Let's listen into some reactions first. जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था, तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है। महिला और महिला संबंधी अपराध के प्रति जो शासन की नीति है उसके तहत इस घटना को त्वरित गति से अनावरण करने के निर्देश शासन के द्वारा प्राप्त हुए थे। उठा के ले गए हैं द्वारे पर, दुश्मनी नहीं। वो लौंडा जो है वो जो सुनील के नाम, वो हमारे घर में एक चक्कर फैल चुका रहा, तो हमारे घर आ गए रहा तो तुरंत दीवार फांदी भाजी गवा रहा। इंसाफ हो चाहिए, उनकी फांसी की सजा हो चाहिए।
लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे, सरकार सीधी नज़र बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। आप पुलिस के पास गई थी क्या? हम पुलिस पास गए न तो हमारे सुनी भाई ना आई करिन कोई कहा यहाँ तुम्हारी लड़की उड़की ना आई है और बिना हमरे जाए से ने पोस्टमार्टम कई कई अब लखीमपुर पठवाए दिन आ जाऊ ना देखे ना बिटिया कैसी है भाई आज ना दिखाई नहीं है ना पूजी नहीं है हमसे कि पोस्टमार्टम करी कि ना करी। बड़े भाई लड़की के क्या हुआ था, कुछ पता चला कौन लोग लेके? नहीं, हम नहीं सर जानते, हम तो दिल्ली में थे, आज सुबह आए। क्या जानकारी मिली घर पे? हमको ये जानकारी मिली यहाँ से घसीट के लेके गए 3 बजे की 3 बजे। लगभग कौन लोग थे? सर ये मुझे नहीं पता, सर ये मुझे नहीं पता। देखिए, जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है, और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी।